Hello students, my name is Mohit Bittal and you are watching your own channel Chemistry on Fingertips. Uh, in this series of lectures, in this series of videos, I was discussing the previous year questions, previous year papers completely. So in the previous two videos, I've already discussed the papers of January 24, 2023 of both shift 1 and 2. And now in this video, I'm going to discuss the January 25th paper, the next day paper of shift 1. Now in this video I'm going to do something new. I will show you that the questions of JEE Main are asked from which topic or from where in NCERT, right? So I will show you the importance of NCERT and why I keep on saying that please do read NCERT at least for 5 times before appearing in any JEE exams, maybe it mains or advanced. In the further videos I will also show you about advanced JEE advanced paper, and I will discuss the JEE advanced paper along with the NCERT where it is from where the questions have been come from, right? So let us start the discussion. So I put the first slide of this only, that I will learn that from where I will learn from where I should study the JEE syllabus, and I think NCERT is the best book. Okay, other than NCERT, yes, you can go. There are other books also, but without without studying NCERT, if you move further, you will not get much, right? I would say because 90% of the paper of JEE comes from NCERT. मे बी इट्स मेंस में तो 100% ही आता है, बट जेई एडवांस का 90% हम लगा के चल सकते हैं. ओनली 10% would come from outside of NCERT, right? So before without studying NCERT, if you think that you can appear in JEE advanced exam, I think it is not an appropriate uh, way of doing the paper, right? Or doing the studies. So let us start the discussion and I will show you from where the questions have been asked from NCERT, right? So let's start with the paper. Okay, this is the first question. Sorry, this is the first question. Alcohol, ether and phenol का question है बच्चे. Now in this question it is given that in the cumene to phenol preparation in presence of air the intermediate is. बेटा देखो ये जो reaction है, ये reaction, ये question directly NCERT का question पूछा गया है, राइट? मैं आपको हो तो आपको बता देता हूँ, अभी हम देखते हैं. बेटा एनसीईआरटी में एक चैप्टर होता है अल्कोहल ईथर फिनोल, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे. और देखो, अरे वही रिएक्शन खुली हुई थी. अब देखिए, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, आप देख सकते हो इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनाया हुआ है ना? इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बना हुआ है. कौन सा इंटरमीडिएट है ये? आप देखिए ये वाला है ना. कौन सा है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, जिसकी वो बात कर रहा है ना, जिसकी वो बात कर रहा है वो ये वाला पेरोक्साइड है. सो अब देखो इसका आंसर आप कितना आराम से आप दे सकते हैं. तो कहने से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, है ना? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो डायरेक्ट वही, डायरेक्ट अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी की रिएक्शन डायरेक्टली आई हुई है. आगे बढ़ते हैं. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन. अब देखो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है? हाँ जी, बेटा इसके अंदर पूछा गया है कि विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. बेटा आप देखो जो हेलो अरीन्स होते हैं, आपको पता है हेलो अरीन्स के अंदर आप ये जो हेलोजन पार्ट है इसको आप हटा सकते हैं. यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विद अनदर न्यूक्लियोफाइल, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विद अदर न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस हेलोजन को हटा देगा, खुद आके लग जाएगा. लेकिन ये रिएक्शन ना इतनी आसान नहीं होती है. उसका कारण क्या होता है बेटा? देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट. द रीजन इज कि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आर्क होता है ना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड वेरियस अदर रीजंस. हम उन रीजंस में तो नहीं जाते हैं, लेकिन हमें ये पता लगे कि रिएक्शन वैसे तो नहीं होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं. द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, and the rate of this reaction can be enhanced by applying electron withdrawing groups at ortho and para positions. ठीक है? तो अगर आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, जैसे अपने NO2 लगाया हुआ है, इस ऑप्शन के अंदर NO2 लगा हुआ है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं. ठीक है? तो लेकिन हमसे तो हाईएस्ट रेट नहीं पूछा, हमसे तो लोएस्ट रेट पूछा है. तो लोएस्ट रेट कब होगा? जब ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं होगा. तो यानी कि कहाँ पे होगा? मेटा पोजीशन पे होगा. तो मेटा पोजीशन वाला ऑप्शन कौन सा है? कैन से ऑप्शन 3, राइट? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. अब देखो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया. डायरेक्टली एनसीईआरटी से कहां से? आप देखिए ये हेलोरीन और हेलो एल्केन का चैप्टर है, और आप देखो एनसीईआरटी में वही टॉपिक खुला हुआ है.
ठीक है ना। तो क्या हुआ, देखो इस हेलोजन को, ये वाला जो हेलोजन है इसको हटाया गया बाय दिस OH ग्रुप। ओके, तो वैसे तो आपने देखा ना कितनी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड अदरवाइज। बट by applying electron withdrawing group, as you can see it is written here, the presence of electron withdrawing group at ortho and para position, है ना, क्या करते हैं, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरी, राइट। तो ऑर्थो पैरा पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। तो मेटा पे नहीं बढ़ा, नेट मेटा पे नहीं बढ़ पाएगा उतना ज्यादा, तो इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एस्प्लोक एलिमेंट का क्वेश्चन है। अरे ये तो एलिमेंट्स का कलर पूछ लिया, फ्लेम कलरेशन क्या देते हैं आपको पता ना, एस्प्लोक एलिमेंट एंड एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स, सॉरी एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव कलर टू द फ्लेम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं देता है ना, बाकी सारे कलर देते हैं। और देखो कलर क्या क्या देते हैं बेटा, देखो ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में हमें गिवन है। एनसीईआरटी में कहाँ पे, देखो अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की एनसीईआरटी खोलूं तो आप देखो एल्कली मेटल्स में जैसे पोटेशियम गिवन है, तो पोटेशियम का कलर क्या होता है, देखो यहाँ पे टेबल में हमें गिवन है, ये देखो। तो पोटेशियम क्या कलर देता है, वायलेट, है ना। तो ये सारे कलर जो है कलरेशन टू द फ्लेम हमें याद रखने हैं, ठीक है। पोटेशियम की वॉयलेट कलरेशन होती है। और एल्कली मेटल्स में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखते हैं क्या कलर आता है बेटा। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो कलर आता है यहाँ पे, ये रहे एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। तो इसमें कलर देखो क्या क्या, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखा कलर टू द फ्लेम। तो अब देखिए क्या गिवन है, कहता है द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड। देखो कैल्शियम कौन सा देता है, ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम गिव्स क्रिम्सन एंड बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन, है ना। देखो तीनों का कलर दे रखा है हमें, और इन तीनों का कलर ही हमें जे के अंदर पूछा गया, बिकॉज बाकी दोनों एलिमेंट तो कलर देते नहीं है, राइट। तो कैल्शियम का क्या पढ़ा था हमने अभी, ब्रिक रेड। तो बी का क्या हो गया, 1। ए का हो गया, देखो ऑप्शंस, ए का हो गया तो 2, है ना, ए का 2 हो गया। बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 3। तो ये बेटा ऑप्शन आपको मिलेगी। आप देखिए कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सेटल होती है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का 4, यस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इज दैट फाइन, है ना। कैसे हमें प्रोसीड करना है, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कम से कम 5 से 6 बार पढ़नी है, तभी आपको जाके फैक्ट्स याद होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स का। बेटा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। देखो कॉन्फॉर्मेशंस आपको पता है कौन सी कॉन्फॉर्मेशन कहलाती है, दीज आर कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, है ना। तो इनमें सबसे स्टेबल कब होता है बेटा, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। और स्टीरिक हिंड्रेंस कम सबसे कम कब होती है, जब जो बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप्स हैं, इफ दे आर एट द मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे विल हैव द मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अब देखिए कहां पर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, देखो पहले बात तो सबसे बड़े ग्रुप्स है कौन से, कहने से मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 60 डिग्री का एंगल है, जबकि यहाँ पे ये 180 डिग्री के एंगल पे है, इससे दूर तो जा नहीं सकते, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। अब देखो आप पूछोगे ये वाला क्वेश्चन कहाँ से, बेटा ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में गिवन है। 11th क्लास की एनसी पार्ट 2 अगर आप हाइड्रोकार्बन खोलेंगे तो वहाँ पे कन्फर्मेशन गिवन है आपको एल्केन्स के अंदर। ये देखिए, ये एल्केन्स खोला हुआ है मैंने, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है आपका। देखो नोमेनक्लेचर भी है, बल्कि हमें तो नोमेनक्लेचर भी आपको वैसे आना चाहिए बहुत अच्छे से, बट हम बात करेंगे कॉन्फर्मेशंस की। कहीं गिवन है कॉन्फर्मेशन, यही देखो आगे ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो क्या गिवन है हमें, कहता एज मेंशन्ड अर्लियर इन स्टैगर्ड फॉर्म द इथेन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर एज फार एज पॉसिबल, दस देयर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यानी कि स्टेरिक इंटरन जितने जो ग्रुप्स हैं ये जितने दूर जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने ब्यूटेन का भी एग्जांपल यहाँ पे लिया होगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, बट सारा एनसीईआरटी का ही है, कहीं बाहर से नहीं आया हुआ क्वेश्चन, बल्कि हम लोग तो अपनी क्लासेस में भी ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, कहता है वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। देखो जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है ना, थोड़ा उसके नेचर को पहले समझ लेते हैं। देखिए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या करती है,
कि वैसे तो नॉर्मली जो रिएक्शन होती है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इनिशियली तो क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर मतलब इनिशियली जो स्टार्ट ही होगी ना रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट होगी। लेकिन क्या होता है कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, इसका जो रेट है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट ही होना शुरू हो जाता है, वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट ही होना शुरू हो जाता है। मतलब इनिशियली तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो तो कंसंट्रेशन के डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। लेकिन इफ द कंसंट्रेशन इज टू हाई, है ना, इफ इट इज टू हाई एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस क्योंकि रेट तो एक लेवल तक ही इंक्रीज हो सकता है ना, उसके ऊपर तो रेट इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इसलिए उस केस में क्या होगा कि जो रेट होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेशन पे, यानी कि उस टाइम पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इनिशियली तो अगर कंसंट्रेशन कम है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगा, और कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर होगी, इट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कौन सा ऐसा ग्राफ हमें दिखता है जो इस चीज को फॉलो करता है, देखो इसमें तो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है, रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, रेट कम होना नहीं है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सी बचती है, ऑप्शन सी। तो आप देख भी सकते हैं कि पहले तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, लेकिन जैसे से हमने कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, ऑलमोस्ट क्या हो गया है, अब धीरे धीरे करता करता क्या हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा ऐसे। इज दैट फाइन? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Then the question is, कहता है acetal and ketal is stable in basic medium. Beta, this is true. What are acetals and ketals? Beta, acetals and ketals are those compounds which are derived from aldehydes and ketones. If they are derived from aldehyde, they will be called acetal, and if they are derived from ketones, they will be called ketal. And the compounds carries two alkoxy groups at a carbon atom. The compound carries two alkoxy group at a same carbon atom. तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं एसिटल एंड केटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा, लेट्स सपोज ये है CH OCH3 OCH3, तो कैन यू सी दो एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन के ऊपर, तो ऐसे ग्रुप को हम बोल देते हैं एसिटल या केटल। अब देखो ये एल्डिहाइड से ड्राइव हुआ है तो इसलिए इसको एसिटल बोलेंगे, अगर बाई चांस कीटोन से ड्राइव हुआ होता तो हम इसको केटल बोलते। तो ये बेटा बेसिक मीडियम में तो स्टेबल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कहता है हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव द स्टेबिलिटी टू एसिटल एंड केटल इन बेसिक मीडियम। देखो ये बात गलत है। देखो पहली बात तो एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं इनकी लिविंग टेंडेंसी हाई नहीं होती कभी भी, ये हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। एल्कोक्सीज आर वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, एल्कोक्साइड आयंस। पहली बात तो यही इसमें गलती है, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा, अगर क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो OH नेगेटिव आयन है वो तो इनको डिस्प्लेस कर नहीं सकता ना, ठीक है, तो वो तो उसको डिस्प्लेस कर नहीं सकता, तो इसलिए ये स्टेबल भी नहीं हो पाएंगे बेसिक मीडियम के अंदर कभी भी। सॉरी, ये स्टेबल रहेंगे बेसिक मीडियम में, क्योंकि OH नेगेटिव इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये अपने स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, ऐसी फॉर्म में रहेंगे। तो इसलिए बेसिक मीडियम में स्टेबल तो होते हैं, लेकिन क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, हाई गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते, पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इसलिए रीजन यहाँ पे गलत है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, राइट। ऑप्शन वन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, हाँ जी, एसिटल्स एंड कीटल्स पे आते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लाइंस की बनूंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये रहे एसिटल एंड कीटल्स, है ना। तो यहाँ पे लिखा होगा बेटा, aldehyde react with one equivalent of monohydroxyl in the presence of dry hydrogen chloride to yield alkoxy alcohol intermediates known as hemiacetals, which further react with known as acetal as shown in reaction. Ketones react with, बेटा इनकी स्टेबिलिटी देखे, and therefore increases the electrophilicity of carbonyl carbon are hydrolyzed with aqueous mineral acid to yield corresponding aldehyde and ketone। देखो aqueous mineral acid से react कर रहे हैं, मतलब ये बेस से react नहीं करते हैं, ये स्पेशली मेंशन्ड है यहाँ पे एसिड्स, तो इसलिए बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, जनरली ये स्टेबल होते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, यस। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। इसमें में क्या गिवन है, कहता है कि दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी ऑल्टरनेट कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देखो कहने का मतलब क्या है, कहते हैं जो एक्स एटम्स है वो या एक तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। देखो पहले तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स जान लेते हैं क्या होता है। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स क्या होता है कि जैसे आपके पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। तो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब होता है कि अगर एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके साथ वाले जितनी भी कॉर्नर्स हैं वहां पर एटम प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये भी इसके साथ वाला कॉर्नर है, ये भी इसके नेक्स्ट कॉर्नर है, यहाँ पर एटम प्रेजेंट नहीं होगा, और ये भी इसके नेक्स्ट कॉर्नर है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके ऑल्टरनेटिवली ऑपोजिट यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे एटम प्रेजेंट है तो इसके नेक्स्ट वाले कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे। सिमिलरली इसके भी साथ वाले कॉर्नर्स पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे। तो एटम जो है आपके वो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम एक क्यूब के अंदर देखें तो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, कैन से एटम्स आर प्रेजेंट at the four corners only. If they are talking about alternate corners, so it means in a unit cell they are present at the four corners only, and the contribution of each corner is 1/8 plus एक एटम कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, कंट्रीब्यूशन इज 1, तो कितना आ गया बेटा आंसर, ये 1.5। ऐसे वाई एटम्स भी निकाल लेते हैं। तो वाई एटम्स कहाँ पे आएंगे, आप देखिए 1/3 ऑफ टोटल फेसेस। तो टोटल फेसेस 6 होते हैं, तो 1/3 ऑफ टोटल फेसेस, कंट्रीब्यूशन हाफ होती है, तो कितने आगे वाई। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो कैसे फॉर्मूला इसका गया x 1.5 y, या फिर अगर हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें ये बन जाएगा x3 y2। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है यहाँ पे गिवन, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है ना, और 4 भी नहीं है ना। तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं बैठ रही। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है बोनस। ये तो बोनस होने वाला है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे मैच नहीं कर रही, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन मैच कर सकती थी अगर ये x 1.5 y होता वो सिर्फ, या फिर x3 होता y2 होता, तब तो मैच होती है ना। तो यानी कि ये दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शंस नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक है। ये तो बोनस मिल जाएगा हमें। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 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 बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये वो चीज है जो आप हमेशा छोड़ देते हो, क्यों, आपको लगता है एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है। बेटा ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर नहीं, लैब मैनुअल के अंदर गिवन है। और बेटा ये है क्या, चलो क्वेश्चन किसका है बेटा, ये आपके बेसिक रेडिकल्स का क्वेश्चन है, और बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप रिएजेंट पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ये लेड और कॉपर 2+ आयन जो होते हैं ये ग्रुप 2 का पार्ट होते हैं बेसिक रेडिकल्स के, ये ग्रुप 3 का पार्ट होते हैं, ये ग्रुप 4 का पार्ट है, और ये ग्रुप 5 का पार्ट है। तो ग्रुप 2 3 4 5 का आपको ग्रुप रिएजेंट्स पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। तो हमें कहाँ गिवन है ये सारी चीजें, अगेन वी विल मूव टू द लैब मैनुअल नाउ। बेटा लैब मैनुअल में आप देखिए, ये रही आपकी लैब मैनुअल, दिस इज योर लैब मैनुअल, इट इज दिस लैब मैनुअल यू विल गेट फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट, ठीक है। 12th क्लास की लैब मैनुअल है बच्चे ये। तो इसमें देखो मैंने ग्रुप रिएजेंट्स ही खोले हुए हैं आपके सामने, ठीक है। और ग्रुप रिएजेंट्स आप देखिए बेटा, लेड और कॉपर 2+ है जो कि ग्रुप 2 का रिएजेंट है, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, H2S गैस इन डाइल्यूट HCl। ग्रुप 3 का ग्रुप रिएजेंट क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन अमोनियम क्लोराइड। ग्रुप 4 का H2S इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड ग्रुप 5 का अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो लैब मैनुअल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए। हम लोग छोड़ देते ना मेंस के लिए चलो एडवांस में देखेंगे, ऐसा नहीं है। जो पूरा सिलेबस है वो आपका पार्ट है जेई मेंस का भी, ठीक है। और इसमें तो बेटा बहुत सारे आयंस अभी मिसिंग है, जैसे ग्रुप 1 में हमारे पास सिल्वर आयंस भी आते हैं, है ना, इवन मर्क्यूरस आयंस भी आते हैं जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है, प्रोबेबली हमारे पार्ट नहीं होगा हमारे सिलेबस का, लेकिन ये जितना है उतना तो करेंगे हम लोग, जितना है उतना तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो लेड और कॉपर 2+ आयन का हमने पढ़ा था H2S इन HCl, एल्यूमिनियम 3+ आयन एंड आयरन 3+ आयन जो कि ग्रुप 3 का रिएजेंट है वो था 3, और सी का जो है ग्रुप 4 का रिएजेंट था H2S इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड बेरियम कैल्शियम का रिएजेंट था ये ग्रुप 5 का। तो राइट आंसर इज ए का आ गया 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आप सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर हमने पढ़ा हुआ होता तो। सब पढ़ने की बात है ना। और कहां से, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं सुननी है, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी है सारी। आगे
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का आ गया, और वो भी इट इज रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स, और पूछा क्या गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा देखिए एंटीबायोटिक क्या होती हैं, अगर हम आप सिर्फ एनसीईआरटी का बेसिक टेक्स्ट ही पढ़ लेंगे आपको पता लग जाएगा। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अनवांटेड, उनको किल करने में काम आती है। ठीक है, उनको किल करती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, तो ऐसी चीजों को बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स, राइट। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, कहता है एंटीबायोटिक मस्ट बी अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यस इट इज ट्रू, एंड एंटीबायोटिक शुड प्रमोट द ग्रोथ और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये गलत हो गया, दिस इज अ रॉन्ग, बिकॉज ये तो हमें रोकने के लिए काम आती है ना, इनहिबिट करती है ग्रोथ को। ओके बेटा देखो जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर खुद भी एंटीबायोटिक्स लगातार प्रोड्यूस होती रहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बॉडी का मैकेनिज्म प्रॉपरली काम नहीं करता, तो हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ जाती है, तो हम फिर आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक ले लेते हैं। वो एंटीबायोटिक ऐसा नहीं कि कोई कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स है, वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट से डिराइव किए होते हैं एंटीबायोटिक, तो हम वही खा लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूसर है, वो हमने खा भी लिया, तो हमारी बॉडी को थोड़ी हेल्प मिल जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी में लाइन भी दिखा लेता हूं, मैंने अंडरलाइन की थी लाइन। तो कहता है एंटीबायोटिक जो होते हैं दैट इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और देखो ये भी लिखा हुआ है, एंड मैं अगर नीचे लिखाऊं, एन एंटीबायोटिक नाउ रेफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होली और पार्शियली बाय केमिकल सिंथेसिस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ, व्हिच इन लो कंसंट्रेशन, वही बात लिखी थी ना लो कंसंट्रेशन वाली। तो सारी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठाएंगे, आप पढ़ने वाले बनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी बच्चे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा। देखो करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाता है, मिथाइल अमाइंस की बात कर रहे हैं बेटा, मिथाइल अमाइंस का करेक्ट ऑर्डर जो है अगेन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, क्या होता है 2 डिग्री, उसके बाद बेटा देखो अमाइंस के केस में क्या हो जाता है, अगर मिथाइल अमाइंस है तो ये 1 डिग्री हो जाता है, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। ठीक है, लेकिन अगर मिथाइल के अलावा कोई अमाइन होता जैसे इथाइल होता, प्रोपाइल होता है ना, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, उन केस में क्या होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फॉलोड बाय 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बन जाते हैं। और ये बेटा भाई कितना ये एनसीईआरटी को सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे, देखो ये ऑर्डर दिखा हुआ, मिथाइल अमाइंस, अब देखिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके अलावा बाकी जितने भी अमाइंस हैं उनमें क्या होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। बस मैंने बार बार नहीं बोला एनसीईआरटी पढ़नी है, आपने खुद पढ़ना है आप। ठीक है, और ये भी याद रख लो ये किस चीज का इंपैक्ट होता है बेटा, वैसे तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि आपको कई बार स्कूल के एग्जाम में भी लिखने को आया था कि ऐसा क्यों होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट का ये नेट रिजल्ट होता है। ठीक है, वैसे अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से आंसर निकालते, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं तो ऑर्डर आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और अगर आप सिर्फ हाइड्रेशन इफेक्ट के हिसाब से निकालते हैं तो आंसर आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एक्वस मीडियम में वो यहाँ पे अप्लाई होता है। इज दैट फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। अरे यार वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये, गिवन है मतलब एनसीईआरटी में 25 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, या एक्स वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है। देखो एक्स वॉल्यूम H2O2 का जो मतलब है, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे एनसीईआरटी में कहाँ गिवन थी बात हमें। देखो 25 वॉल्यूम H2O2 का मतलब ये होता है ना, कि मींस 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 solution will give off 25 liter of oxygen gas at STP, 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो बेटा ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, इसको अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये एक्स होती बाई चांस, तो फिर इसको मोलैरिटी में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो मोलैरिटी में क्या बन जाता है, ये मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11.2, ये बन जाता है। तो जिसको अगर हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 25 अपॉन 11.2। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब इतने मोल H2O2 पर लीटर प्रेजेंट है। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछा, हमसे पूछा 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, तो ग्राम्स में के लिए हम क्या करेंगे, इसको कहने से H2O2 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 34, है ना, ग्राम पर लीटर। तो इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये ऑलमोस्ट 375 के आसपास आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने एकदम देख के, बड़ा आसान है, कैलकुलेशंस फास्ट करो।
11.2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाए 33.6, अप्रोक्सीमेटली ये 3 हो गया। तो 3 इंटू 25 75, अप्रोक्सीमेट हमने आंसर निकाल दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में कहा गिवन है। बेटा एनसीईआरटी में देखो ये H2O2 का टॉपिक गिवन है ना हाइड्रोजन चैप्टर में, यहाँ पे गिवन है आपको, है ना। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मींस 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सॉल्यूशन विल गिव 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। अब यहां से आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, वो आपका काम है। इज दैट फाइन। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है तो मोलैरिटी कैसे निकालनी। आप चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन हम डेरिवेशन में भी जा नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z, हमें पता है ना, राइट। तो कहता है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन अपॉन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन, है ना। कहता है लिथियम 2 प्लस आयन का अगर x है तो बेरिलियम 3 प्लस आयन का बताओ। तो रेशियो ले लो आप। रेशियो रेडियम लिथियम 2 प्लस आयन के लिए जो रेशियो क्या हो जाएगी, n² बाय z, 2² बाय z3। अच्छा, बेरिलियम के लिए 3² बाय z4। क्या बन गया ये 16 बाय 27, है ना। तो कहने से रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस आयन, है ना, वुड बी इक्वल्स टू 27 अपॉन 16 टाइम्स, हाँ जी, इसका रेडियस कितना गिवन था x। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन 1। अब यार इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही पूछ सकता कोई, है ना। ठीक है, ये अगेन एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये फॉर्मूलेज वगैरह तो अब बार बार इसके तो क्या ही देखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस फॉर्म्स अ कंपाउंड है। बेटा ये रिएक्शन तो भाई चलो पहले लिख लेते हैं। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, कहता है इसकी रिएक्शन कराई व्हाइट फास्फोरस के साथ, तो क्या बनता है बेटा, ये बनता है PCl3। साथ में बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं SO2 बेटा इस रिएक्शन के ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन, एक बार एडवांस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ए हो गया। कहता है इसकी हाइड्रोलिसिस की वाटर से रिएक्टर होया, कहता है एक डायबेसिक एसिड बन गया, दैट डायबेसिक एसिड इज H3PO3। तो ए एंड बी आर, ये ए और बी आपके सामने है। अब आपको यार ये रिएक्शंस कैसे याद करनी है, कहां पे गिवन है, अगेन एनसीईआरटी। ये देखो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी खोली हुई है मैंने, पी ब्लॉक एलिमेंट की 12th क्लास की। ठीक है, इसमें आ जाओ नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर। मैं पढ़ता रहता हूँ ना, इसलिए पेज थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। हाँ जी, तो आप देखिए नाइट्रोजन फैमिली, ओजोन, ऑक्सीजन फैमिली चल रही है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, हाँ ये रहा फॉस्फोरस आ गया। तो बेटा देखो फॉस्फोरस फैमिली में PCl3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये, आप देखो ये रहा, दिख रही है रिएक्शन ये वाली, P4 प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पे देखो क्लियरली गिवन है आपको। PCl3 बन गया और उसकी हाइड्रोलिसिस भी देखो उसके जस्ट नीचे गिवन है। आप देखो दो रिएक्शंस को मिलाकर एक रिएक्शन बनाते हैं आपके सामने, एक क्वेश्चन बना दिया। और इस रिएक्शन पे तो क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर भी पूछा गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको कहां से पढ़ना है इनऑर्गेनिक, पढ़ो ना पूरा एनसीईआरटी, इतना ही लिमिटेड ही पढ़ लीजिए, इसमें से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट्स करेक्ट ऑर्डर इज। बेटा देखिए इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ये ऑर्डर ऐसा होता है कि हीलियम, अगर आप लेट्स सपोज हीलियम, ये नियोन, क्या होती है नोबल गैसेस, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, है ना। इसको बेटा आप याद रख लीजिए, इसका ट्रेंड ना कुछ इस तरह का होता है कि हीलियम की बहुत कम पॉजिटिव होती है और नियोन की बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। उसके बाद धीरे 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 वैल्यू कम होती रहती है, लेकिन वो हीलियम से कम नहीं होती है, लाइक दिस, कुछ इस तरह का ट्रेंड होता है इसका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो आई कैन से कि ट्रेंड क्या होगा कि नियोन का सबसे ज्यादा, है ना, फिर क्रिप्टन, फिर जीनोन, और सबसे कम किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा। आपको ये कहाँ गिवन है बेटा, अगेन ये एनसीईआरटी के अंदर हमें मेंशन्ड है। एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में अगर आप डेटा खोलेंगे आपको सारा डेटा वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो वैसे देखो ये डेटा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ओके, और बेटा पी ब्लॉक तो आपको ना पूरा डेटा वाइज याद करना है।
Now in this question, it is a question of organic chemistry amines. बेटा देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं सारा जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। देखो इसके अंदर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जैसे हमारे पास कंपाउंड है ये, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में लगा हुआ है NO2। अब देखो हमने इस पे ऑपरेशंस क्या क्या किए। बेटा सबसे पहले तो कहता है हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो बेटा ब्रोमीन क्या करेगा, कहने से ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर लेगा, है ना। तो जब ब्रोमिनेशन होगी तो अब देखो कहाँ पे लगेगा ब्रोमीन, कहने से देखो दो बेंजीन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट, और एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज विड्रॉइंग। तो जब भी रिलीजिंग और विड्रॉइंग दोनों ग्रुप लगे होते हैं तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके हिसाब से लगता है, वो हमेशा रिलीजिंग के हिसाब से लगता है। और रिलीजिंग के हिसाब से भी कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पैरा पे। तो इसके ऑर्थो पोजीशन ये रही और पैरा पोजीशन पे तो NO2 लगा हुआ है, तो यानी कि ये कहाँ पे आके लग जाएगा, ऑर्थो पे आके लग जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ए प्रोडक्ट, दैट वुड बी दिस। ओके, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई SnHCl के साथ, SnHCl के साथ। बेटा SnHCl क्या करता है, बेटा SnHCl क्या करता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी कर देता है रिडक्शन, उसकी कर देगा रिडक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूस होके NH2। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्टेप में डाईआइसोटाइजेशन कर दी, NaNO2 एंड HCl डाल दिया। ठीक है, देखो ये बना हमारा A, ये बना हमारा B, राइट। अब हमने डाईआइसोटाइजेशन कर दी, तो बेटा डाईआइसोटाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तो हमारे सिलेबस के अंदर है सारा, ये बेटा ये सारा सिलेबस का पार्ट है। ये एनसीईआरटी में मैं दिखाऊंगा अभी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस कहाँ गिवन है, फिर आपको होगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई H3PO2 के साथ। तो देखो H3PO2 के साथ क्या बनने वाला है, बेटा H3PO2 के साथ क्या करता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देता है टू बेंजीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट निकल जाएगा, बाकी सारा पार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। ये रहा आपका Br, ये हमारा बना था प्रोडक्ट C और ये बन गया प्रोडक्ट D। अब आखिरी में बेटा हमने क्या किया, हमने कर दी इसकी ऑक्सीडेशन। आखिरी में हमने कर दी इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी अब देखिए क्या डाला, KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो बेटा KMnO4 डाल देंगे, बाद में मीडियम को एसिडिफाई भी कर दिया आपने। तो क्या होगा बेटा, देखो KMnO4 क्या करता है, बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो उसको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो बेंजीन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, मिथाइल ग्रुप, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट एज योर ई प्रोडक्ट। दिस इज योर प्रोडक्ट ई। तब देखिए कौन सी ऑप्शन इस चीज को सेटिस्फाई करती है, कहने से अगर आप ई प्रोडक्ट चेक कर लें तो सिर्फ ऑप्शन सी ही इस चीज को सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन 3 ही इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप प्रॉपरली आपने अमाइंस को पढ़ा हुआ है तो। अब देखो अमाइंस में आपको डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस भी हमारे सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है ना। क्लियरली आप दिखाता हूँ मैं आपको, अमाइंस के अंदर डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा देखो बहुत इन्होंने ना सारी रिएक्शंस एक साथ ही लिखी हैं बल्कि डाइजोनियम सॉल्ट की, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये देखो ये रहा डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, सैंडवियर रिएक्शन, कैटरमैन्स रिएक्शन। अच्छा वो जो मैं रिएक्शन हमें पूछी गई है वो ये रही, आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट विद H3PO2, है ना। तो देखो ये तो H3PO2 वाली रिएक्शन है। आखिर डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, उसकी रिएक्शन भी एनसीईआरटी से उठाई है इन्होंने। देखो ये वाली रिएक्शन डाइज, ये एनिलीन, इसकी NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराई एट 273 केल्विन एंड 273 टू 278 केल्विन, राइट। तो कहने का मतलब है कि बेटा एनसीईआरटी में से ही सारा का सारा पूछा जाता है। ओके, तो मैंने क्योंकि बोला हुआ है आज मैं आपको पूरे एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से रिएक्शन पूछे गए हैं बताऊंगा, तो इसलिए मैं सारे आपको रिएक्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, देखो हमें गिवन है कुछ कंपाउंड गिवन है हमें बायोमोलिक्यूल्स के, और हमें इनके करेक्ट नेम के साथ इसको मैच करना है। ठीक है, तो बेटा देखो ये तो आपको जैसे आप देखिए, जो ये एक दो दो तो 6 मेंबर ड्रिंक है और दो है 4 मेंबर ड्रिंक, 5 मेंबर ड्रिंक। देखो जो 6 मेंबर ड्रिंक वाले इस तरह के कंपाउंड होते हैं बायोमोलिक्यूल्स,
ये यहाँ पे अगर आप नेम्स देखेंगे, फ्रक्टोफुरानोज, फ्रक्टोफुरानोज, ग्लाइकोपाइरानोज एंड ग्लाइकोपाइरानोज, तो ये 6 मेंबर रिंग वाले होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं पाइरानोज रिंग, राइट, ये होते हैं पाइरानोज रिंग। और जो 5 मेंबर रिंग वाले होते हैं इसको हम बोलते हैं फुरानोज रिंग, ठीक है। अब इसमें भी हमसे क्या पूछा हुआ है, अल्फा बीटा दे रखा है। देखो अल्फा और बीटा किस बेस पे चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है इस कार्बन के ऊपर, जो ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन होता है ऑन द राइट साइड। इसको देख के हम बात करते हैं कि अल्फा है कि बीटा है, और कैसे। बेटा देखो ये जो OH है, अगर ये OH आपके डाउन साइड में हो, अगर ये OH डाउन साइड में हो तो उसको बोलते हैं अल्फा, अगर ये अप साइड में है तो उसको बोलते हैं बीटा। तो आप मुझे बताइए ए वाला क्या आ जाएगा, कहने से ए वाला हो जाएगा अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोस, ए वाला 3, ए वुड बी 3, है ना, 3 मैच कर जाएगा। और बी को फिर कौन मैच कर जाएगा, 4। तो आप देखो कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें ए को 3 मैच किया और बी को 4, कहने से 3 एंड 4th ऑप्शन। अच्छा बी पे आते हैं, इस पे आता है, इसमें भी यही है, OH अगर नीचे है तो इट वुड बी अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन होगी, और ये क्या हो गया बीटा, ये सेकंड ऑप्शन होगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, और ये सारे स्ट्रक्चर बेटा बायोमोलिक्यूल में बनाए गए हैं पहले से। आपको मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। आप देखो स्ट्रक्चर, ये रहा बायोमोलिक्यूल, और ये रहे इसके स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ये रहा देखो, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड अल्फा डी फ्रक्टोफायरानोस एंड बीटा डी फ्रक्टोफायरानोस। बट आप देखिए क्या मुश्किल है ये, आप एनसीईआरटी को तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछ लिया जो एनसीईआरटी में गिवन थे, है कि नहीं, है ना। तो एनसीईआरटी तो बस करनी है, रटनी है, जो मर्जी करो, आप समझो इस बात को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर जो हमें दे रखा है 11th क्लास के अंदर, उससे ये डायरेक्ट रिएक्शंस उठाई गई है। क्वेश्चन क्या है, सम रिएक्शन ऑफ NO2 रेलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन आर, राइट। और कुछ रिएक्शंस बेटा हमें जो दे रखी हैं वो ये हैं कि NO2 की रिएक्शन कराई सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कहता है X बना और Y बना, और X की रिएक्शन कराई अपने A के साथ तो B बन गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि रिएक्शंस हमें कहाँ गिवन है ना, और कौन सी रिएक्शंस की ये बात कर रहा है। देखिए बेटा हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री खोलेंगे, देखो ये रिएक्शंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में पूरी की पूरी ऐसे ही दे रखी हैं आपको रिएक्शंस, ये देखो। देखिए बेटा फोटोकेमिकल स्मोक में ये रही फोटोकेमिकल स्मोक, और ये रही रिएक्शंस। आप देखो यहाँ पे NO2 रिएक्ट विद सनलाइट टू फॉर्म NO एंड O, है ना, और O रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ओजोन। देखो ये डायरेक्ट रिएक्शंस दे रखी हैं, डायरेक्ट जो एनसीईआरटी की रिएक्शन दी थी गिवन है, उन्हीं में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखो ये देखो, देखिए तो यानी कि क्या हो गया, NO को अपने इससे रिएक्ट करवाया तो क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, वी गॉट NO एंड, सॉरी नॉट दिस वन, ये NO हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन को अपने रिएक्ट करवाया ओ किसके, तो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, ओजोन। तो ये रिएक्शंस है। तो अब देखिए X क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन, Y क्या हो गया, NO, A क्या हो गया, O2 एंड B क्या हो गया, ओजोन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शंस का क्वेश्चन। और अब देखो जेई मेंस के अंदर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री लेबोरेटरी लाइफ, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन और ये ऐसे चैप्टर है, अगर मैं 2-3 बार पढ़ लिया आपको रिएक्शंस ऑटोमेटिकली ही याद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपने इनको जरूर पढ़ना है, ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपका जेई मेन के अंदर अच्छा रैंक आए, ठीक है ना, अच्छी परसेंटाइल बन जाए। आगे बढ़ते हैं, 49 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेटा एल्डिहाइड कीटोन में क्वेश्चन देखिए, एक नॉर्मल एल्केन दे रखा है हमें, कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर है ये, और इसकी रिएक्शन कराई आपने तो ये बन गया आपके पास
है ना, एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन गया अल्कोहल, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला। बेटा देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है, इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए ये तो शायद, ये वाली रिएक्शन तो शायद कैनिजारो रिएक्शन है ना। कैनिजारो रिएक्शन भी होता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है। अब अगर ये कैनिजारो और अल्कोहल कैनिजारो रिएक्शन से बना है तो कैनिजारो रिएक्शन तो किसकी रिएक्शन होती है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। तो यानी कि हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, यहाँ से हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड ही तो बेसिक मीडियम में है ना, और बाद में एसिडिफाई करने पे क्या बना देता है, बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल, है ना। तो अब हमें देखना है कि हमें इससे, ये वाला कंपाउंड से कैसे ये हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, कहने से पहले तो हमें रिंग बनानी पड़ेगी, बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, एरोमेटाइजेशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम इसकी एरोमेटाइजेशन करेंगे, इसको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजीन रिंग तो बन जाएगी 6 की और एक रख जाए मिथाइल ग्रुप, और फिर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन करके बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे 2 स्टेप करने पड़ेंगे, एक तो एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन करने के लिए तो बेटा देखो थर्ड इक्वेशन के अंदर आपको ये रिएजेंट दे रखा है, ये रिएक्शन डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है आपको। क्रोमियम ऑक्साइड 770 केल्विन एंड 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर उसके बाद आपने रिएक्शन कर दी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्या कौन सी रिएक्शन है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन भी एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज कॉल्ड इटार्ड्स रिएक्शन। मैं दोनों रिएक्शन दिखाऊंगा, अब आपको दोनों ही रिएक्शन दिखाऊंगा, आप देखना। और ये है क्रोमियम ऑक्साइड, है ना, 770 केल्विन एंड 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। मैं आपको सारी रिएक्शंस दिखाने वाला हूँ। अब देखो 11th के अंदर सबसे पहले तो पहली रिएक्शन तो बेटा हाइड्रोकार्बन में गिवन है। तो हाइड्रोकार्बन में कहाँ गिवन है, देखो ये हाइड्रोकार्बन आ गया, ये एल्केन्स के अंदर रिएक्शन गिवन है, ये देखो, ये देखिए रिएक्शन, ये वाली, ये 6 कार्बन एटम था, है ना, तो बेंजीन बना दिया। और अगर 7 कार्बन एटम होता तो क्या बन जाता, अगर आप हेप्टेन लेते तो 7 कार्बन एटम वाला मिथाइल डेरिवेटिव बन जाता बेंजीन का, यानी कि टोलुइन, ठीक है। तो ये तो होगी एरोमेटाइजेशन की बात, ओके। अच्छा अब हम बात करते हैं जो हमने आगे की रिएक्शंस पढ़ी थी, यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड वाली। तो वो देखो कहाँ गिवन है, यस ये आ गया एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर होगा, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे ही आते हैं हम लोग। पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है ना, ये देखो ये रिएक्शन है ये रही, दिख रहा है आपको, क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड्स रिएक्शन, है ना। टोल्यूइन को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो वही किया था हमने अभी। उसके बाद बेंजल्डिहाइड की अपने क्या की, कैनिजारो। तो बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो करेंगे, देखो आगे नीचे गिवन होगा सारी, देखो तीनों रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ये देखिए बेटा, बेंजल्डिहाइड, इसकी अपनी रिएक्शन की बेसिक मीडियम में क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट, विच ऑन एसिडिफिकेशन विल फॉर्म बेंजोइक एसिड। तो अब बताइए बेटा, अब डायरेक्ट एनसीईआरटी रिएक्शंस, इसके बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप जो जितना मर्जी पढ़ते लो कि मुझे ये वाली किताब पढ़नी है, मुझे सोलोमन पढ़ना है, मुझे मॉरिसन वॉइड पढ़ना है, पर इसका कोई तोड़ नहीं है बेटा, एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटी कर लोगे फालतू की रिएक्शंस नहीं करनी पड़ेगी, वरना ऐसे ऐसी किताबें पढ़ोगे तो 1 साल तो पूरी एक किताब पढ़ने में लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound A react with ammonium chloride and forms compound B. Compound B react with water and excess of CO2 to form compound C, which on passing through. Okay. बेटा देखो रिएक्शन हमें गिवन है, कहता है एक कंपाउंड A है, आपने इसकी रिएक्शन कराई अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो इसने कंपाउंड B बनाया, B की रिएक्शन कराई आपने एंड एक्सेस ऑफ CO2 के साथ, तो बेटा कहता है कंपाउंड C बन गया, एंड विच ऑन पासिंग थ्रू द रिएक्शन विद सैचुरेटेड NaCl, तो बेटा कंपाउंड बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, और ये रिएक्शन है सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपाउंड गिवन होते हैं हमें बेटा, एक तो सबसे पहले केस में तो हमें गिवन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसकी जब हम अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं बेटा ये बन जाता है अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस एक्सेस ऑफ CO2 के अंदर पास जब कराते हैं हम लोग तो ये बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो ये रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है ना। आप देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। So the right answer for this question is question number 4,
ऑप्शन नंबर 4। बेटा आप देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा दिस सिलेक्शन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सॉल्वेज प्रोसेस का ये पार्ट है। आप देखिए Solvay's process, it is given in alkali metals compounds. So yes, this is the reaction. Beta देखो, this is the reaction. What is the reaction is? What the reaction was that you made to react. देखो, this is the reaction that ammonia when react with excess of CO2 gas form ammonium bicarbonate, which on reaction with NaCl form ammonium chloride and sodium bicarbonate. And how do we get ammonia? The ammonia is obtained by passing ammonium chloride through basic medium. I think it is written over here. Sodium carbonate is generally prepared by Solvay's process. In this process, advantage is taken of the low solubility of sodium bicarbonate, whereby it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium bicarbonate. The latter is prepared by passing CO2 to a concentrated solution of sodium chloride and saturated with ammonia, where ammonium carbonate followed by ammonium bicarbonate are formed. The equations are as follows. Okay, yes, and this is the reaction of ammonium chloride when reaction with calcium hydroxide forms ammonia gas. You can see all the reactions are given in NCERT. Okay, so this is my purpose to make you aware of the importance of NCERT. Let's move further. Now we'll get numerical type questions. First question is, for the first order reaction A gives B, the half-life is 30 minutes. The time taken for 75% completion of the reaction is this much. बेटा देखिए 75% completion, आप देखो ना, इनिशियली अगर हाफ लाइफ 30 मिनट है, इट मींस 100 to 50 होने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स, है ना? तो 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा? अगेन 30 मिनट्स, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यानी कि 100 से 25 होने में टोटल टाइम कितना लगे? 60 मिनट्स। वही बोले 75% कंप्लीशन होने में, तो 75% कंप्लीशन होने में टाइम लग गया हमारा 60 मिनट्स। तो 60 मिनट इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। It is just an oral question. Okay, let's move further. How many of the following metal ions have similar value of spin-only magnetic moment in gaseous state? How many of the following metal ions have similar value of spin-only magnetic moment in gaseous? Okay, spin-only magnetic moment. But a spin-only magnetic moment depends upon number of unpaired electron. Spin magnetic moment is directly proportional to number of unpaired इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड निकालने हैं बेटा, वेनेडियम 3+, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो वेनेडियम 3+ की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 18। देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो वेनेडियम 3+ है, तो वैसे तो वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d3, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल गए, 1 इलेक्ट्रॉन हमने डी में से निकाल दिया, तो वेनेडियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी दिस। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा। क्रोमियम की वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s1 3d5, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो एक 4s से निकल गया, 2 3d से निकल गए, तो ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम +3 की। Fe+2 की बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो आयरन होता है 26 एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2, राइट। लेकिन आपने आयरन +2 कर दिया, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सो इट विल बी 3d6 ओनली, सो इट विल बी कैरिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। And next is nickel +3. Beta nickel +3 is atomic number 28. So its configuration is 4s2 3d8. 4s2 3d8. Since it is nickel +3, so 2 electrons from 4s and 1 electron from 3d has been eliminated. So we'll be left with only 7 electrons in 3d. 7 electrons will be packed like this. Now you can see the number of ions which are having same number of unpaired electrons are, can I say only 2 ions, chromium +3 and nickel +3. You can see chromium +3 is carrying 3 electrons, nickel +3 is carrying 3 electrons. So their spin only magnetic moment will have similar values. So I could say the right answer would be option, the numerical value 2 is the right answer. 2 ions have the same or similar value of spin only magnetic moment. Let's move further. In sulfur estimation, 0.471 gram of an organic compound gave 1.4439 gram of barium sulfate. This method is called Carius method, and this method is again given in NCERT, right?
I would first like to show you the method where it is given. It is given in POC, the part of NCERT which generally we leave, you know. So this is the chapter GOC, General Organic Chemistry. At the end of this chapter, this topic is given to us. I want to show you the topic. It comes in the qualitative analysis, percentage of sulfur. No, it is not Keres. Keres is for halide ions. I think for sulfur, yes, for sulfur also we call it Keres. It is a part of Keres method only. Okay. So in this, the reaction belongs to this the particular topic. Now, how do we proceed? How do we proceed? But करना कैसे है देखो, organic compound given, mass of organic compound given is 0.471 gram, and it is giving barium sulfate 1.4439. So the sulfur in this organic compound, the sulfur in this 0.471 gram of organic compound will come from barium sulfate. The sulfur in barium sulfate will come from this organic compound, right? So I can say the amount of sulfur in barium sulfate, 1.4439 gram of barium sulfate, would be the sulfur present in this organic compound. So I can say percentage of sulfur is, so how much is the mass of sulfur present in this barium sulfate? See, the one molecule of barium sulfate is carrying one sulfur atom. So I can say the molecular mass of sulfur, atomic mass of sulfur atom is 32, and the molecular mass of barium sulfate is 233, right? So this is the amount of sulfur, fraction of sulfur present in one molecule of barium sulfate. So into 1.4439, that is the amount of sulfur present in the barium sulfate, and all this sulfur has come from organic compound. So percentage of sulfur would be the mass of sulfur in this barium sulfate upon the mass of organic compound into 100. So beta, you need to solve this. Organic compound, the mass of organic compound is how much? It is given to us as, uh, how much? 0.471. So we need to solve this question, and from here we'll get the right answer. The right answer would be, let's see, a little bit of calculations. So 30, let's see, let's do the calculations in rough. You also do the calculation in your copies in rough. Yes, so this will comes out to be almost 42%. So this is 42%. The right answer is 42%, almost, right? Because it is nearest integer, so we just put 42. Let's move further. In question number 54, the question is the osmotic pressure of solution of PVC in cyclohexanone at 300 Kelvin are plotted on the graph. Okay, this is a graph for osmotic pressure. Now, since we know the formula of osmotic pressure as pi is equals to CRT, where C is in molarity, but this is molarity into RT, right? And what is molarity? And over here the concentration is given in gram per liter, so we'll convert this molarity into gram per liter. So we can write it as number of moles upon volume into RT, right? Which can be written as, better number of moles can be written as given mass by molecular mass into V by RT. Now, what is this mass by volume? Can you say mass by volume is nothing but it is written as gram per liter. Over here it is represented by C. So we can write it as C into RT by M. So from here, if we make a graph between pi by C, that would be equal to RT by M. So by looking at the graph, we can see the slope of the graph would be RT by M. So the slope, which is RT by M, can say its value is given to us as 6 into 10 raised to power minus 4. So from here we can say molecular mass is equals to RT by M, where R is 0.083, temperature is given to us as 300 upon M, 6 into 10 raised to power minus 4. So we'll solve this equation. Let's see how much is the answer. This is this will be 2, and this will be 100, and it will be 400. If we shift this two zeros over here, this is 4.15. So I can say it is 4.15 into 10 raised to power 4.
or to be more precise, 41500. So right answer would be 41500 as our right answer. So molecular mass would be equal to 41500. I hope the solution is clear to everybody. Let's move further. Next question is the density of a monobasic strong acid is this much, 1.21 kg per liter. The volume of the solution required for the complete neutralization of 25 ml of 0.24 molar NaOH. But let's first find out how much acid is required, right? How much mass of acid is required. So we are given that we have NaOH and it is a monobasic acid. So let's suppose it is some acid HA. So when they will react, it will form Na, salt plus water. So I can say the number of moles of acid required is equal to number of moles of NaOH. So number of moles of NaOH which are given to us as 25 into, if volume and molarity is given to us, we can find out the number of mole, that is molarity into volume by 1000. So this is the number of moles of acid required to neutralization. So let's find out the value first. This will come out to be 600, I think, 6 by 1000. So these are the number of moles of acid required. So now if this is the number of moles of acid required, then the mass of acid required we can find out, because we know the number of moles, we know the molar mass. So mass of acid required will be 6 by 1000 into 24.2, right, grams. So this will be equals to 215240, 145.2 by 1000 grams. So this is the mass of acid required, but we are asked the volume of acid required and the density of solution is given to us. So I can say volume of acid required would be equals to the mass upon density. So mass is 145.2 by 1000 grams, and the density, let me convert this as in gram per ml. So this will be in gram per ml. So I think this will come out to be same only, gram per ml. So let me put it over here, 1.21. So this will be the volume of acid required in ml, right? So this will comes out to be, we have to solve this, and it is, if we divide it by 121, it will be 242, and it will be 12. Okay, so 120, I think this is 120, or I said 12 upon 100 ml, right? So we have to put the answer in 12 into 10 raised to the power minus 2. So I can say right answer would be 12 into 10 raised to the power minus 2. 12 is the right answer. Nearest integer we have to put. So right answer is 12 into 10 raised to the power minus 2. Yes, this is the next question. And yes, this is the next question. An athlete is given 100 gram of glucose for energy. This is equivalent to 1800 kilojoule of energy. The 50% of this energy gained is utilized by the athlete for sports activities at the event. It means 900 kilojoule energy has been utilized. In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire is, assume that there is no other way of consuming stored energy, given that the enthalpy of evaporation of water is 45 kilojoule. So we are given that the athlete has gained, or absorbed 1800 kilojoule of energy. Out of that, 900 kilojoule of energy has been consumed. So how much energy is left? 900 kilojoule. So 900 kilojoule of energy he has to I can say he has to eliminate from his body in the form of perspiration of water. And we know that 1 mole of water requires 45 kilojoule of energy. So how much water he need to perspire? So I can say, let's suppose he need to perspire X moles of water. So per mole of water require 45 kilojoule of energy. So I can say total energy required for perspiration of water is X into 45. So X will comes out to be, I can say 900 by 45, or it will be equals to 20 moles. So yeah, it means he has to perspire 20 moles of water, which is equals to 20 into 18. That will be equal to 360 grams of water. So he had to perspire 360 grams of water to eliminate that 900 kilojoule of energy that has been stored in his body. This is a question, very simple question. Let's move further. Next question is consider the cell. This is a cell. Okay, it is a
iron and hydrogen cell. So given that reduction potential of iron is this and for hydrogen it is this, if the potential of the cell is 0.712, the ratio of concentration of Fe plus 2 to Fe plus 3 ion. Okay, so we have to find out the ratio of concentration of Fe plus 2 and Fe plus 3 ion. First, let's write down the equations of this cell. See, as you know, on the right side it is always a reduction reaction, and on the left side it is always oxidation reaction. So I can say at cathode the reaction that would be going on here, it means on the right side, it will be going, the reaction would be going on is this Fe2 plus Fe3 plus ion gains an electron to form Fe plus 2 ion. And at anode, which is on the left side, the reaction that is going on is this oxidation reaction, that is hydrogen is losing 2 electrons and forming H plus ions. So if we balance this equation, can we say our net equation will become this? We have to multiply the first equation by 2, so the net equation will become this Fe3 plus ion, 2 Fe3 plus ion plus hydrogen gives 2 Fe2 plus ion plus 2H plus ion. This is the net equation. So from the net equation, if we write the Nernst equation, the Nernst equation would be equal to E cell is equal to E naught of cell minus 0.059 by number of electron transacted in this equation is 2 into log of the concentration of H plus ion, which is already 1 molar. Okay, so we no need to write this concentration, so we can just write down the concentration of Fe plus 2 ion its square upon the concentration of Fe plus 3 ion its square, and the partial pressure of hydrogen is also given to us as 1 atmosphere. Okay, so from here we can take 2 common out of log, and E cell is given to us as 0.712. E naught cell, which will be E naught of cathode minus anode. For cathode the E naught value is 0.771 and for anode it is 0. So I can say it is 0.771 minus 0.0, so 0.771 minus. If we take 2 out, so it will become 0.059 by 2 into log of Fe2 plus upon Fe3 plus. This will be the equation. So from here 2 and 2 will cancel out, and our net equation, net answer will comes out to be, let me write it down at the bottom because there is no space left. So this is equal to, let me shift this 0.712 on the right side and rest of the equation on the left side. So it will become 0.059 into log Fe2 plus upon Fe3 plus equals to 0.771 minus 0.712. So this is equals to 9 5 0.059. So from here can I say 0.059 will cancels out, so it is equal to log 1, and log 1 is what, 10. So I can say this implies Fe plus 2 upon Fe3 plus ion concentration value will comes out to be, if log is equal to 1, that is equal to 10. So right answer would be 10. So I can say the right answer for this question is 10. So it is mostly based on Nernst equation question. I hope this is clear to you. Next, let's move to the next question. But the next question is of ionic equilibrium. The question is a liter of buffer solution. Just a moment. Yes, the next question is of chemical bonding. The question is the total number of lone pairs of electron on oxygen atom of ozone. Beta, we have to just make the structure of ozone. This is the structure of ozone, right? It is positive, it is negatively charged. Let me put the lone pairs. 2 lone pairs here, 1 lone pair here, and 3 lone pairs here. The total number of lone pairs in ozone molecular 1 2 3 4 5 6. So 6 is the right answer. I think no question can be easier than this question, है ना? Let's move further. Okay, next question is from ionic equilibrium. The question is a liter of buffer solution contains 0.1 mole each of ammonia and ammonium chloride. Okay, it is a basic buffer, weak base and its salt of strong acid. On addition of 0.02 moles of HCl by dissolving gaseous HCl, the pH of the solution is found to be, okay. So initially we are having ammonia and ammonium chloride, right? But when you add HCl in it, what would happen, that ammonia will react with this HCl and form ammonium chloride. So if the initial moles of ammonia are 0.1, right? So can say out of this 0.1,
0.02 moles will react with this, because HCl you added is 0.02 mole. Okay, so how much ammonia would be left? 0.08 moles. And how much ammonium chloride will be formed in the net equation? See, ammonium chloride formed from this equation is 0.02, and already the solution is carrying 0.1 mole of ammonium chloride. So I can say that ammonium chloride formed will be 0.1 plus 0.02, that is 0.12. So these are the final number of moles of ammonia and ammonium chloride in the solution. So the net pH of the solution would be, we have to find out pOH first. So pOH is equal to pKb plus log of concentration of salt by acid. Since the volume is same for both, so I can say pKb, how much value of pKb is given? 4.745 plus log of, yes, concentration of salt or number of moles of salt is 0.12 and this is 0.08. So we need to find out the value. We have to solve this for, so this is equals to 4.745 plus, can I say this is log 3 and this is minus log 2, and the value of log 3 and log 2 is given to us, 4.745 plus log 3 is 0.477 and this is 0.301. So let's solve it. Let's see how much is the value. This will comes out to be 0.176. So let me add 0.176 over here. One, two, 9, 4.921. This is the pOH. So from here, can I say we can find out pH? So our pH will be equal to 14 minus 4.921. So this will be equals to I can say 9.079. So which is the pH of the solution is found to be dash into 10 raised to power minus 3. So which is, I can say 9079 into 10 raised to power minus 3. This is the right answer, 9079. So this is the solution of this question, and that is all from this paper. So you can see the paper is completely asked from NCERT. Okay, so what you need to do is you have to read NCERT at least 5 to 6 times, at least 5 to 6 times I can say, and especially the theory chapters, because the physical chemistry chapter, the concepts are totally from NCERTs, and most of the teachers cover all those concepts, so that is not a problem. The problem is in inorganic chemistry and in organic chemistry. In organic chemistry they teach extra. In inorganic chemistry they don't even teach that inorganic chemistry part. So the point is you have to complete whole of the chemistry, especially the theory part, and the best book to do that is NCERT, in which there is optimum knowledge given to you, or only the amount of knowledge that is required for the JEE exam. Okay, so I would say you please go through NCERTs. That is the most important part. And if you like this video, please like our channel and like this video and subscribe to our channel for more such kind of videos. I will keep on putting more videos of even JEE advanced papers. Okay, that is from where the questions are asked from NCERT. I will show you that 70 to 80% paper is directly from NCERT, and rest of the 20% paper is the application of NCERT concepts. Okay, so that is all. Please subscribe to our channel. Thank you.